Now, number of ways, ठीक है, in which R people can be selected from N people sitting in a row if no two of them are consecutive. ठीक है, number of ways in which R people can be selected out of N people sitting in a row if no two of them are consecutive. N minus R plus 1 CR, ये याद रखना है. No two of them are consecutive. Now you can directly use it. No two of them are consecutive. So they're not sitting consecutively. So two people are not sitting consecutive. That means बोला कि there are 10 people, 3 people are not sitting consecutively. या 3 people are not sitting एक के बाद एक के बाद एक. तो we can use n minus r plus 1 CR. I repeat, n minus r plus 1 CR. Now for example, think of it as like this. ठीक है, there are 10 seats. Question है ये. There are 10 seats in front of the theater. There are 10 seats in front of the theater. Find number of ways. Find number of ways of selecting seats so that no two seats are together. No two seats are together. ठीक है, there are many ways of solving it. Now since I give the formula directly now, we can use n minus r plus 1 CR. So if you अगर ध्यान से देखेंगे, all you have to do is there are 10 seats, so this will become 10 minus 2 plus 1 C2. So this becomes कितना हो जाएगा, बोलो कितना, एक मिनट. सो दैट नो टू सीट्स आर टुगेदर. एक्चुअली नो 4 सीट्स ले सकते थे हम लोग. एक काम करो, ये लोगों इस पर नहीं करेंगे हम लोग. सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे करेंगे. देखो ध्यान से देखो. देर आर 10 सीट्स इन फ्रंट ऑफ द थिएटर. फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 सीट्स सो दैट नो 2 सीट्स आर टुगेदर. अब हाउ मेनी सीट्स आर देयर? 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. However I can solve. What can we do here? And it's not that you have to use this formula. ये मुझे formula देना था. How are we going to process with this sum? If I have to start with this sum, there are 10 seats in front of the theater. Find the number of ways of selecting seats so that no two seats are together. समझो, there are 10 people. No two girls are together. But उसमें boys और girls दिया था. इसमें बोला है 10 सीट है. I have to select 2 seats such that they are not together. Now this is the difference that I am trying to tell you. Imagine there are 6 boys and 4 girls. 10 ही है but 6 boys and 4 girls. No two girls are together. हम लोग क्या करते थे? We used to select boys. जिसका कंडीशन नहीं है उसका परमिटेशन फैक्टोरियल हो गया 6 फैक्टोरियल. अब 6 बॉयज़ के बीच में कितना जगह रहेगा? 7 जगह रहेगा. वो 7 में आई कैन अरेंज 4 गर्ल्स. इसमें 10 सीट दिया. No boys, no girls. They have given 10 seats. So according to you,
मुझे बोला है कि आई कांट सेलेक्ट 1 2, आई कांट सेलेक्ट 2 3, आई कांट सेलेक्ट 3 4, आई कांट सेलेक्ट 4 5, आई कैन सेलेक्ट 1 and 3. I can select 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10. I can't select 2 1. I can't take 2 2 also, but I can take 2 3, 2 नहीं 2 3 भी नहीं ले सकते, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 2 10. So now I give an example. See अगर मैंने 8 ले लिया, समझ 8 सीट ले लिया, तो I can't take 7 8. I can't take 8 9. So how do I process this? अभी सिर्फ सीट्स दिए एंड बोला है कि नो 2 सीट्स आर टुगेदर. बोलो, नो 2 सीट्स आर टुगेदर. यू हैव टू टेल मी हाउ विल वी अरेंज. और मैंने बताया भी है 10 सीट है. हाउ डू वी राइट दिस? चूजिंग सेलेक्टिंग नंबर ऑफ सीट्स, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग. सेलेक्टिंग बोला मतलब कॉम्बिनेशन हो, तो अपने को पता ही चल गया. सो अकॉर्डिंग टू यू हाउ कैन वी प्रोसेस विद दिस? बोलना बेटा. 2 सीट का ग्रुप बनेगा 5C1. 5C1. 5C1 क्यों, मतलब समझा नहीं तो. दो का सीट बनाया था, ठीक है. तूने 5C1 मतलब 5 ये समझ. अच्छा ये बोल रहा कि ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ग्रुप हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है चलेगा. 5C1 एक सेलेक्ट कर दिया. 2C1 into 2C1. बट दे शुड नॉट बी टुगेदर. नो 2 सीट्स आर टुगेदर. दे शुड नॉट बी टुगेदर. तूने 5C1 मतलब समझ, तूने इसको सेलेक्ट कर लिया, समझ इसको सेलेक्ट कर दिया. अभी इंटू 2 फैक्टोरियल. 5C2 into 2 factorial. 5C2 मतलब समझ इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया. बट अगर तूने इसको सेलेक्ट किया तो ये तो दोनों साथ में ही है ना. ये दोनों साथ में नहीं होना चाहिए. मैं बता रहा हूँ, समझ मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो एनीवन हु इज अलॉन्ग विथ मी, माई फ्रेंड कैन नॉट सिट हियर बट कैन सिट हियर 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 हियर. समझा सब लोग? तो ये दो मैं ऐसे, अगर मैंने ये सेलेक्ट किया समझो, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकता, बट मैं बाकी सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सो नाउ टेल मी हाउ विल वी प्रोसीड विद दिस सम? हाउ डू यू थिंक कैन यू प्रोसीड? So 2 times 10C5 alternate spaces. 2 टाइम 10C5. 10C5 मतलब 10 में से कोई भी 5 सीट को सेलेक्ट कर लिया, And then तो वो तो ये भी हो सकता है 5. तूने कोई भी रैंडमली कह रहा बराबर. रैंडमली 5 सीट सेलेक्ट करना मतलब इट कैन बी 1 2 3 4 5. इट कैन बी 1 3 5 7 9, वो भी राइट है. बट 1 2 3 4 5 भी राइट है. इट कैन बी 2 3 4 5 6 और इट कैन बी 2 4 6 8 10. तो कोई भी 5 आ सकता है. कोई भी 5 मतलब 1 2 भी हो सकता है और 6 9 10 भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है, कोई भी 5 हो सकता है. बट बोला है कि नो 2 सीट्स आर टुगेदर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन गाइस? बोलो, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन बोलो. अच्छा चलो एक बात बताओ, ठीक है? पे अटेंशन है एवरीवन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. हम सेलेक्ट करेंगे 6 सीट्स. मैंने सेलेक्ट किया 6 सीट्स. कोई बताएगा कि देयर आर 10 सीट्स इन फ्रंट ऑफ द थिएटर. नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सीट्स सो दैट नो 2 सीट्स आर टुगेदर. अगर मैंने 6 सीट सेलेक्ट किया, 6 सीट्स, वो 6 सीट्स के बीच में कितना जगह रहेगा? 7. श्योर? ठीक है. तो 6 सीट्स के बीच में तुम लोग बोल रहे हो कि देयर आर 7 प्लेसेस. ठीक है, ओके. अब मुझे एक बात बताओ कि दे हैव सेड दैट नो 2 सीट्स आर टुगेदर. इसमें ना एक्चुअली नो 4 सीट्स होना चाहिए था मेरे हिसाब से. इट शुड बी नो 4 सीट्स. वेट एक मिनट, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है. आई हैव टू चेक फ्रॉम माई नोट्स. इट शुड बी 4 सीट्स एक्चुअली. ठीक है, 2 मिनट रुकेंगे. We'll keep this question. I will just check the question and I'll get back on this. I think there should be 4 seats होना चाहिए, not 6 seats. ठीक है, we'll keep the question on hold. End of the lecture तक we'll finish this. ये क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं. Let's start with the next question.
we'll check the question. I'll check the question and I'll get back. Between Delhi and Mumbai, there are 10 intermediate stations. In how many ways can a train be made to stop at 3 of its station if no 2 of them are consecutive? हाँ, इससे स्टार्ट करना था मुझे. If no 2 of them are consecutive, what is the formula? N minus R plus 1 CR. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे भी 4 था बट ठीक है. कितना स्टेशन है? 10. N का वैल्यू क्या है? 10. R का वैल्यू क्या है? 3. तो इफ़ आई हैव टू डायरेक्टली राइट इट, व्हाट विल इट बिकम? 10 minus 3 plus 1 C3, which will become 8C3. 8C3. That's it. That's it. No 2 of them. वो पहले वाले में 4 था गाइस, तो no 2 of them are consecutive. मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे ना. आई वुड सजेस्ट यहाँ पे ना 4 ले लो. Just take it as 4. Just take it as 4 here. So what I can do is 10 minus 4 plus 1 C4. कितना हो जाएगा ये? 7 C4. बस. No 2 of them are consecutive. No 4 seats are together. No 4 are consecutive. Direct 4 ले लो and this is the answer for 10 C4. मैंने क्वेश्चन लॉन्ग लिख दिया, तो अगर 2 रहता था तो इट वुड बी 10 minus 2 plus 1 C2. तो यहाँ पे मैंने 2 लिया था, इसलिए हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल 4 ले लिया. अब कंसेक्यूटिव कितना भी हो सकता है. किसी ने बोला देयर आर 50 सीट्स, नो 45 आर कंसेक्यूटिव, नो प्रॉब्लम. यू हैव टू जस्ट बी 50 माइनस. बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? ये आर है ना, वो इससे छोटा नहीं हो सकता. तो रिमेंबर दिस. आपको ये बोलेगा 50 सीट्स है, देखो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबली 45 आर नॉट टुगेदर, ऐसा हो ही नहीं सकता है. बट चलो अगर मैंने सॉल्व किया n माइनस आर प्लस 1 सी आर, what is this? This will become 6C45. Guys, is this possible? R has to be less than equal to n. Are you guys understanding? R कभी n से बड़ा नहीं हो सकता है. So you have to be careful about that also. Did you guys understand this? तो इसलिए I did not want to take an example जहाँ पे दोनों में 2 ही यूज़ हो रहा है. तो इसलिए in the first example we took 2. यहाँ पे no 2 of them are together and 3 of it's made to stop in 3 of the stations दिए. Now a very nice question, the next one. If Pn denotes the number of ways 3 people can be selected. याद रखो, Pn denotes number of ways 3 people can be selected out of n people. Now n people दिए है, number of people n दिया है, so that no 2 of them are consecutive. No 2 of them are consecutive. If Pn plus 1 minus Pn is equal to 15, n is equal to question mark. बताओ, n people दिया है, कितना consecutive है कितना consecutive नहीं है वो भी दिया है, और Pn denotes the number of ways 3 people can be selected. According to you, what should be done here? 1. सबसे पहले हाँ, Pn is equal, बोल बेटा, Pn is equal to, what is Pn equal to? n minus 3
n माइनस 3 प्लस 1 सी 3. ओके, चलो पी एन हो गया. आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी वॉट इज पी एन प्लस 1. बताओ, बोलो. आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी वॉट इज पी एन प्लस 1. बताओ क्या रहेगा. अरे बोलो, टेल मी व्हाट इज पी एन प्लस 1. अरे एन की जगह एन प्लस 1 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, बोलो ना. एन प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 सी 3 की चेंज होएगा. आर को अफेक्ट हो रहा है क्या, तो क्या हो जाएगा बताओ. एन n minus 3 c3 एन माइनस 3 n minus 1 c3 ओके, और ये क्या हो जाएगा एन माइनस 2 सी 3. बोलो क्या करेंगे. तो अब यहाँ पे सब शुरू करेंगे. तो दिस विल बिकम n माइनस 1 सी 3 माइनस इज इक्वल टू. बताओ क्या करेंगे. वॉट एवर यू से, क्या कर सकते हो बताओ. फॉर्मूला क्या लिखो, वो तुम लोग बताओ क्या लिखो. मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n minus 5 factorial इक्वल टू 15. n माइनस 1 3 फैक्टोरियल n माइनस 2 4 1 4 2 3. देखो यहाँ पे ध्यान से देखो. n माइनस 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 15. एक बार चेक कर लेते हैं. 1 4 2 5 1 4 2 5. बोलो इसके बाद क्या करेंगे. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज टू वॉट यू आर सपोज टू डू. हाँ ठीक है. n माइनस 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा कैसे. n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 15 टाइम्स 6. ओके, केयरफुल रहेंगे. कुछ तो कॉमन आ रहा है. देखो ये कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है. सब लोगों को दिख रहा है. चलो मैंने ले लिया n माइनस 2 कॉमन, मैंने ले लिया n माइनस 3 कॉमन. अंदर बचा n माइनस 1 माइनस n माइनस 4 इक्वल टू 90. Is this correct? Yes. So n minus 2 n minus 3 अगर ध्यान से देखोगे ना तुम लोग, so this will become n minus 1 minus n plus 4 equal to 90. ये देखो ये निकला n ये निकला n. Guys what is minus 1 plus 4? 3 हो जाएगा और 90 हो जाएगा. तो is it right to say that n minus 2 n minus 3 equal to what? 30. So n minus 2 n minus 3 is equal to 6 times 5. n minus 2 is equal to 6. n minus 3 is equal to 5. Therefore n is equal to, is this correct? Yes. So n का value 8 आ गया. What we have done? Nothing. What we have done? We have just made sure कि जो डेटा दिया है. अब देखो यार, अगर यहाँ पे कल पूछा 3n plus 1, कुछ नहीं करना है. n के जगह 3n plus 1 डालो. p of 3n plus 1 डाला रहेगा. समथिंग माइनस समथिंग. अगर n 5n भी दिया है, यू नॉट सपोज टू थिंक n विल बी रिप्लेस बाय 5n. n विल बी अगर 7n दिया है तो n विल बी रिप्लेस बाय 7n. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स हियर? द लास्ट टॉपिक, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सम वाला टॉपिक है, बट द लास्ट टॉपिक फॉर permutation combination is circular permutation.
देखो यार, सर्कुलर परम्यूटेशन नाम में आता मतलब सर्कल. एग्जाम्पल राउंड टेबल. पूरा फैमिली बाहर गया खाने खाने को, सब लोग ऑब्वियसली राउंड टेबल बैठे, सो दैट एवरीवन इज सिटिंग एट अ राउंड टेबल. अब सुनो मेरा बात ध्यान से. द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड टेबल, ये एक राउंड टेबल. कैन यू टेल मी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ राउंड टेबल? राउंड एक ऐसा शेप है जो जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म होता है, मतलब दैट पॉइंट इज रिपीटेड ट्वाइस. अब कोई बोलेगा ना ये सर्कल है, तो ये सर्कल नहीं है, अज्यूम भी नहीं कर सकते. इट इज नॉट अ सर्कल, बट दिस इज अ सर्कल. अब व्हाई एम आई पुटिंग एम्फेसिस ऑन दिस इज द फॉर्मूला फॉर सर्कुलर परम्यूटेशन इज n-1 factorial. The formula for circular permutation is n-1 factorial. समझो 10 friends have gone for a party. They are sitting on a circular table. Find the number of ways they can be arranged. Circular word सुना और कोई कंडीशन नहीं बोला. 10 लोग गए हैं, पार्टी करने गए हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, 10 लोग हैं, मतलब माई आंसर वुड बिकम 10-1 factorial, बिकॉज जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है. सो द फॉर्मूला फॉर सर्कुलर परम्यूटेशन इज n-1 factorial. तो माई आंसर विल बी 9 factorial ways. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? अब ऑब्वियसली उसमें भी क्वेश्चन रहेंगे, 2 people आर टुगेदर, नॉट टुगेदर. अब एक और चीज बिफोर ऑब्वियसली आई विल बी गिविंग द फॉर्मूलाज फॉर एवरीबडी. समझो ये एक दोस्त बैठा है, समझो 5 लोग हैं, एक दूसरा ज़्यादा लोग हैं, 3 4 5 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग. ठीक है, 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग. अगर ये पोजीशन फर्स्ट है, इसका पोजीशन क्या रहेगा? सेकंड. इसका पोजीशन क्या रहेगा? दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है ये? बोलो. द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉकवाइज एंड यस. सो सर्कुलर परम्यूटेशन में ना क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना पड़ेगा. पर्टिकुलर सम्स में कभी बोलेंगे कि अगर मेंशन किया है तो यूज़ करना ही है, बट पर्टिकुलर सम्स में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज यूज़ होगा. मैं बताऊंगा कौन से सम्स में, बट रिमेंबर दिस, सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं होता है. अब बाकी पूरा PNC का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पे. 2 people आर टुगेदर, नो 2 people आर टुगेदर, 2 people, there should be 1 person between 2 people, there should be nobody, everything same concept of everyone. हमको सिर्फ ये याद रखना है कि सर्कुलर परम्यूटेशन क्या बोलते हैं, कि भाई सर्कुलर परम्यूटेशन में मेरा फॉर्मूला है n-1 factorial, वो चेंज नहीं होगा. डजंट मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज, इफ इट इज अ सर्कुलर परम्यूटेशन. अब मैंने अगर एक ओपन स्टेटमेंट बोला कि देयर आर 10 people अरेंज, देयर आर 10 friends who have gone out for a party, in how many ways will they be arranged? My answer is 10 factorial. Just because they were sitting on a circular table, my answer became 9 factorial, because the formula for circular permutation is not n-p-n, it is n-1 factorial, that is n-1 p-n-1. Has everybody understood this? So remember this, ये है मेरा circular permutation का formula. इसका एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है, number of ways to arrange seven Indians and 7 Americans at a round table so that no 2 Americans are consecutive. डायरेक्ट उससे स्टार्ट किया. नो 2 Americans are consecutive. समझा? किसको अरेंज करना है?
अमेरिकन को करना है, इंडियंस को नहीं करना, दोनों को करना है। कंडीशन किसका दिया है? सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? इन हाउ मेनी वेज कैन बी इंडियंस बी अरेंज इन राउंड टेबल? 6 फैक्टोरियल। लवली, ठीक है। सो ऐसे करते हैं, इंडियन 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 इंडियन, राउंड टेबल पे बैठे हैं, ठीक है। राउंड टेबल पे बैठे, मैं बता रहा हूँ, ये पूरा राउंड टेबल में बैठे हैं, ठीक है। अब इंडियंस कैन बी अरेंज्ड इन 7 - 1 फैक्टोरियल वेज, बराबर। अब बताओ अमेरिकन्स को हम कैसा अरेंज करेंगे? कितना जगह है? 7 है क्या इंडियंस? अच्छा 6 ही बनाएगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे भी एक इंडियन ले लेते हैं। चलो इंडियन, चलो बराबर ना, इंडियन थोड़ा खिंच लेते हैं, नहीं चलो ठीक है, थोड़ा अच्छे से कर लेते, इसको यहाँ पे ले लेंगे इंडियन, इसको यहाँ पे, चलो 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कंडीशन देखो क्या है, नो 2 अमेरिकन आर कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का कंडीशन क्या था? हाउ डू नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? कितना जगह है इन बीच में, कितना जगह है वो बताओ? 7 है पक्का, बट एक हमेशा ज़्यादा रहता था, सर्कल है, सर्कल है ना, सर्कल में घूम फिर के काउंट करते ना, 1 2 3 4 5 6 7, कितना जगह है? कितने अमेरिकन्स को अरेंज करना है? इन हाउ मेनी वेज? 7 अमेरिकन्स को 7 जगह में कितने वे में अरेंज कर सकते हैं? 7p7। 7p7 इज 7 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे हम लोग ने 7 - 1 क्यों नहीं किया? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अरेंज द इंडियंस ऑन अ राउंड टेबल। इंडियंस को अरेंज कर दिया, नाउ राउंड टेबल कॉन्सेप्ट इज ओवर, नाउ यू आर गोइंग टू अरेंज द अमेरिकन्स इन द स्पेसिस। अब वो लोग राउंड टेबल पे नहीं है, राउंड टेबल का कंडीशन हो गया खत्म गाइज, राउंड टेबल कंडीशन खत्म हो गया। अब बताओ हाउ मेनी प्लेसेस आर लेफ्ट? 7। हाउ मेनी अमेरिकन्स आर देयर? 7। दे कैन बी अरेंज्ड हाउ मेनी वेज? 7p7। 7 व्हाट इज 7p7? तो कितना हो जाएगा ये? 6 फैक्टोरियल टाइम्स 7 फैक्टोरियल। बोलो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस? तुम लोग राउंड टेबल में एक ही बार यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है? नो 2 अमेरिकन्स आर टुगेदर। अब तुम कैसे भी करो, you will have to understand a simple scenario कि if you are arranging the Americans in the round table, सबसे पहले you have to understand कि जिसका कंडीशन दिया है वो सबसे लास्ट में यूज़ होगा। इंडियन सबसे पहले बैठेंगे and they can be arranged in 6 factorial ways, and उसके बीच में जितना जगह है, because round table पे ना we don't know how many places are there, we actually don't know how many places are there, इसीलिए जिसका कंडीशन नहीं दिया हमने उसको अरेंज किया पहले इंडियंस को ऑन अ राउंड टेबल यूजिंग द फार्मूला n - 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 6 फैक्टोरियल। एंड अब 7 जगह बचा है बीच में, और 7 जगह में मुझे 7 अमेरिकन्स को अरेंज करना है इन 7 फैक्टोरियल वेज। हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? आई डिड नॉट डू दैट ईजी क्वेश्चन कि इन हाउ मेनी वेज 10 पीपल विल सिट ऑन द राउंड टेबल। सबको आता है आंसर 9 फैक्टोरियल रहेगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली एक सम स्टार्ट किया जहाँ पे 2 अमेरिकन्स आर नॉट टुगेदर। अब हमको एक डायग्राम याद रखना है ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। सबसे पहले इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा टेकन एट अ टाइम, टेकन एट अ टाइम। टेकन एट ए टाइम में हम याद रखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज, उसका आंसर आएगा n - 1 फैक्टोरियल। विल बी डूइंग द सम्स फर्स्ट। सबसे पहले हमको ट्री डायग्राम याद रखना। अब नेक्स्ट आता है एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। अब देखो याद रखो यार, इसका सम्स रहता है जैसे कि गार्लैंड, नेकलेस, फ्लावर गार्लैंड, नेकलेस। अभी फॉर एग्जांपल समझो तुम लोग ऐसा पीएनसी पढ़ा, तुम लोग बोला नहीं यार पीएनसी अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सीखने का, तुम लोगों ने बोला मम्मी मेरे को गार्लैंड बनाने का, तो तुम लोग ने मार्केट में लाके धागा लेके आया। अब तुम लोग गार्लैंड के लिए व्हाट इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर गार्लैंड? फ्लावर। चलो फ्लावर गार्लैंड बनाएंगे हम लोग। तो जब धागे में डालेंगे तो लेफ्ट साइड से नीचे जाएगा कि राइट साइड से नीचे जाएगा? कौन सी साइड से भी जा सकता है?
That is where clockwise and anti-clockwise comes into the picture. Are you guys understanding this? That is why clockwise and anti-clockwise comes into the picture. But अगर मैं wrist watch की बात करूँगा, have you ever seen the hands of a minute second clock? Have you ever seen it go anti-clockwise? नहीं. This is where anti-clockwise is not equal to clockwise. कि वो हमें पता है कि कैसे जाता है. That's why the name is anti-clockwise. Clockwise मतलब हमको पता है कि ऐसे ही जाने वाला है, वो ऐसे ही घूमेगा, वो एक ही जगह में घूमता है. अब किसी का घड़ी अगर ऐसा घूम रहा है मतलब तुमने घड़ी उल्टा पहना है, वैसे नहीं घूम सकते. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गार्लैंड हो गया, नेकलेस हो गया, नेकलेस ऑफ पर्ल्स, तुम लोग को ऐसा डायमंड मिला, आज डायमंड नेकलेस बनाएगा खुद के लिए. तो व्हेन द नेकलेस का डायमंड गोज डाउन, इट कैन बी क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तो याद रखो, टेकन एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम. अब यहाँ पे टेकन एट ए टाइम बोला है, टेकन ऑल एट ए टाइम. सॉरी मैं वही बोल, टेकन ऑल एट ए टाइम, ऑल. बट यहाँ पे याद रखो, अब मैंने बोला ऑल नहीं लेंगे, बट टेकन आर एट ए टाइम. आर मतलब 5, 6, 10 थिंग्स है. यू हैव टेकन 4 एट टाइम और 5 एट टाइम. सो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है. अभी समझो, वेयर एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज. सो NCR इंटू R-1 फैक्टोरियल. एंटी क्लॉकवाइज नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज, NCR इंटू R-1 फैक्टोरियल. एंड वेयर एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा NCR इंटू R-1 फैक्टोरियल अपॉन 2. ठीक है, NCR into R-1 factorial upon 2. Now for example, now we'll start with the first question. In how many ways letters of the word terrorism is written in a circular form? बताओ कितना लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 letters को सर्कुलर फॉर्म में लिखना है. इन हाउ मेनी वेज कैन आई राइट 9 letters इन ए सर्कुलर फॉर्म? ठीक है, तो कैन आई राइट 9 - 1? बोल दो. एनीथिंग एल्स? कुछ रिपीट हो रहा है? 3 फैक्टोरियल. तो आंसर इज 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. मैंने क्या बोला? बाकी सब रूल्स अप्लाई होएगा. वो सर्कुलर है बट रिपीट हो रहा है, तो जितना बार रिपीट हो रहा है यू हैव टू टेक इट टुगेदर. मतलब यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल बिकॉज R इज रिपीटेड. अगर वहाँ पे M भी रिपीट होता था तो इंटू 2 फैक्टोरियल भी आता था. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो द रूल्स अप्लाई फॉर एवरीथिंग. नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज. Number of ways in which 5 girls and 5 boys are seated on a circular table. If a particular girl and boy are not adjacent. Oh no, break up. Obviously साथ में नहीं बैठेंगे. Breakups. बताओ तुम लोग कैसे अरेंज करोगे इनको? They can't stand each other. First they used to sit together, always together. Now never together. तो बताओ कैसे always together को कैसे never together को हम लोग सॉल्व करेंगे? बट सर्कुलर टेबल है. तो टेल मी, सबसे पहला कंडीशन अगर मुझे बोलना है तो हम लोग क्या करेंगे? अब देखो इसमें ऐसे नहीं बोला कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर. बोला है एक लड़का एंड एक लड़की साथ में नहीं बैठेंगे. तो हाउ डू आई अप्रोच विद द क्वेश्चन?
हाउ डू आई सॉल्व द क्वेश्चन एंड व्हाट कैन बी डन, आराम से बता मुझे। Total cases minus always together. और टोटल टुगेदर माइनस ऑलवेज टुगेदर, चलो ठीक है, ऑलवेज टुगेदर बताओ कैसा करेंगे ऑलवेज टुगेदर। 8 factorial. 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल वेस डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल टोटल, अच्छा टोटल करेंगे, चलो पहले टोटल करते हैं। टोटल में कैसे करेंगे, 10 minus 1 c. कितने लोग हैं, 10 लोग हैं टोटल। टोटल मतलब टोटल वेस, टोटल में मुझे पता है कि तेरा 10 पीपल कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल, बट वो लोग किस पे बैठे हैं, सर्कुलर टेबल में। दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 9 factorial. तो 10 - 1 लिख दूँ, 10 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 9 factorial. नाउ 1 बॉय एंड 1 गर्ल आर ऑलवेज टुगेदर। बताओ, टेक इट एज 1 टर्म, ओके ले लिया एक को, एक बॉय एक गर्ल को साथ में ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा, 9 टर्म्स हो गया। 8 factorial ways they can be arranged in 8 फैक्टोरियल वेस times 2. कि 9 फैक्टोरियल, 8 factorial. 8 फैक्टोरियल वेस, श्योर 8 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। अब देखो व्हेनेवर 1 बॉय एंड 1 गर्ल आर टुगेदर वी टेक इट एज 1, तो समझो ऐसे रहेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कितने 10 पीपल, समझो दिस बॉय एंड दिस गर्ल आर टुगेदर, तो ये अगर साथ में है 10 लोग हैं, उनको अरेंज कर दिया इन 10 फैक्टोरियल वेज, दो को साथ में ले लिया, तो नाउ इफ यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों को विल टेक इट एज 1 ग्रुप, 1 पेयर इज 1 पेयर। तो आई हैव 9 पीपल, एक्चुअली 9 पीपल, so now 9 people can be arranged in how many ways on a circular table, 8 factorial। तो I will write 9 - 1 factorial times 2 factorial बराबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8 factorial times 2 factorial। अब क्या हो जाएगा फाइनल, नेवर टुगेदर इज इक्वल टू नॉर्मल माइनस ऑलवेज टुगेदर। व्हाट इज नॉर्मल, माइनस 8 factorial times 2 factorial। Did you guys understand this? अब इसमें 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ऑब्वियसली देर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग दिस, दिस इज द ईजिएस्ट वे दैट यू कैन थिंक ऑफ। सेकेंड इज तुम लोग सर्कल बनाओगे, पहले गर्ल्स को अरेंज करोगे, बॉयज़ को अरेंज करोगे, उसके बाद इंडिविजुअली एक बॉय को लोगे, एक गर्ल को लोगे। अब वो थोड़ा टीडियस हो सकता है। इफ़ यू रिमेंबर दिस 1 बॉय एंड 1 गर्ल ऑलवेज टुगेदर, normal minus always together is the concept of never together। did you guys understand this? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो इफ़ यू रिमेंबर दिस ना, देखो ये याद रखो, दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब दिस कैन बी रिटन इन पी ऑल्सो, अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये परम्यूटेशन में भी लिख सकते हैं, n factorial upon r factorial into n minus r factorial, this is r minus 1 factorial। तो you can arrange it in a particular manner, I'll show you how। इसका मतलब देखो क्या होता है गाइस, अगर मैंने इसको अरेंज किया, इसको सॉल्व किया, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे को बताओ, n factorial upon n minus r factorial. ये हो जाएगा r factorial कैन राइट r into r minus 1 factorial, yes no, Yes. and into n n minus r factorial times r minus 1. टाइम्स r minus 1 factorial। ये देखो ये निकल गया, ये निकल गया। What is n factorial upon n minus r factorial? NCR. So this can be written as npr upon r। This is npr ना, npr upon r is when clockwise, anti-clockwise is not equal to clockwise। So some people write in npr ways, some people write in ncr into r minus, it's the same। यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये सेम है, सेम। तो तुमको कोई बता सकता है इसका क्या रहेगा, एन पी आर अपॉन 2r, इट्स द सेम। हियर कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तुम जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको करेंगे। अगर ये है डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा इसका लिखा नहीं है ना, सॉरी, इसका फॉर्मूला है n minus 1 factorial अपॉन 2, इसका भी आ गया। सो नाउ यू नो एग्जैक्टली कहाँ पे क्या रहेगा, इसके बीच में बना देते हैं। डिड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस? तो इसमें स्ट्रेस नहीं है, इसमें भी इफ यू राइट, देखो यू कैन राइट इट लाइक दिस, you can write it like this, you can write it like this, or you can write normal, whatever is convenient for you। इसलिए मैंने
परम्यूटेशन में भी लिख दिया और कॉम्बिनेशन में भी लिख दिया। अब तुमको जो भी कंफर्टेबल रहेगा, हमने सी से भी किया, अब थोड़े सम इसको हम लोग NPR से भी करेंगे कि यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज करें NPR से करना है, दोनों से करेंगे। इन दी एग्जाम इट्स अप टू यू, वेन एवर यू सॉल्विंग अ सम, बी प्रैक्टिस एनीथिंग, इट्स अप टू यू, व्हाट इज मोर कंफर्टेबल फॉर यू, आई विल टीच यू बोथ दी ऑप्शन। हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? चलो सर क्वेश्चन लेते हैं, ईजी क्वेश्चन है सब। चलो नाउ find the number of ways, find the number of ways in which first n different beads, second 10 different beads can be arranged to form a necklace. बताओ number of ways in which n different beads, 10 different beads can be arranged to form a necklace. Can be arranged to form a necklace. Now, बोलो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? Find the number of ways in which n different beads can be arranged to form a necklace. What do you understand? N different beads can be arranged to form a necklace. कहाँ पे गया? N different beads can be arranged to form a necklace. बताओ n different beads can be arranged to form a necklace. क्या रहेगा आंसर? n different beads can be arranged to form a necklace. n minus 1 factorial upon 2. n minus 1 factorial. अब बोला है कि 10 different bead, हाँ n minus 1 factorial upon 2, ठीक है, n minus 1 factorial ये वाला n minus 1 factorial upon 2. अब क्या बोला उसके बाद? 10 different beads. तो गाइस 10 different beads का आंसर क्या रहेगा? 9 factorial upon 2. 10 minus 1 factorial upon 2. 10 minus 1 factorial upon 2. तो देखो ये नॉर्मल, कुछ कंडीशन दिया नहीं है. So what I can do is for n different beads, first part, n different beads will become n minus 1 factorial upon 2. But guys, second part, 10 different beads can be arranged to form a necklace. बोलो 10 different beads का क्या रहेगा? 10 minus 1 factorial upon 2 upon 2. Did you guys understand this? Normal. कोई और कंडीशन नहीं है. नेकलेस का सम है. इन हाउ मेनी वेज वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. अभी अगर मैंने एक कंडीशन ऐसा लिया, नेक्स्ट कंडीशन, इफ आई टेक अ कंडीशन सेइंग दैट find the number of ways in which find the number of ways in which 10 different flowers find the number of ways in which 10 different flowers can be strung to form a garland so that 4 particular flowers are never separated. Are never separated. बोलो. नेवर सेपरेटेड. 10 फ्लावर्स है, 4 एट अ टाइम. मुझे गार्डन बनाना है, मुझे 4 फ्लावर्स को ऐसा रखना है कि 4 फ्लावर साथ में रहेगा. ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 डिफरेंट फ्लावर्स कैन बी स्ट्रंग टू फॉर्म अ गार्लैंड सो दैट 4 पर्टिकुलर फ्लावर्स आर नेवर सेपरेटेड. तुम्हारे हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स? बताओ. NCR इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 नहीं, यस नो बोलो. Minus 1 factorial upon 2. n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2. ओके, वो तो टेकन ऑल एट अ टाइम है. सब गार्लेंड थोड़ी बोला टुगेदर. कौन सा गार्लेंड बोला? कितना बोला है फ्लावर्स? 4 flowers. टेकन आर एट अ टाइम.
तो मुझे पता है कि दोनों में से एक फॉर्मूला। अभी दोनों में से देखो, थोड़ा इसको दूर रख लेते हैं ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये इसका कॉम्बिन परम्यूटेशन का लिखा है फॉर्मूला, यानी इसका बोलो। सो 4 एट ए टाइम बोले, 4 एट ए टाइम ना। इफ आई से 4 एट ए टाइम, अब एंटी क्लॉक, मैंने क्या बोला, गार्लेंड में हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब टेकन एट ए टाइम में ये आएगा। अब इसको तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दैट्स अप टू यू, बट ये तो बोला है कि 4 एट ए टाइम बोला है। सो अच्छा देखो, एंटी क्लॉकवाइज नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। सो अगर मुझे 4 एट ए टाइम बोलना है, यही दो ऑप्शन है मेरे पास, बिकॉज आई कांट टेक दैट, तो 4 फार्मूला में से 2 फार्मूला निकल गया, अब बचे 2 फार्मूला। अब गार्लैंड में देखो ना, यहाँ पे लिखा है नेकलेस गार्लैंड में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आएगा। हाउ, व्हाट शुड बी द आंसर, टेल मी। एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। अच्छा क्या लिखूँ वो बताना मेरे को बेटा, हाउ डू आई राइट दिस? 10C4 into 4 minus 1 factorial upon 2. 10C4 into 4 minus 1 factorial. What is 10C4? बोलो। 10 factorial upon 6. नहीं 10C4 मतलब 7। बेसिकली मुझे एक बात बताना, एक सिंपल सी बात है। तुम देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके लेट मी शो इट लाइक दिस। देयर आर 10 फ्लावर्स, कितना टुगेदर है? 4, 4, टेल मी हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर? 6, 7. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? तुम लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, टेकन एट ए टाइम बोला है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस लाइक दिस, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन, थिंक ऑफ इट एज 10 people are there, 6 boys 4 girls, 4 girls are together, ठीक है, इतना ही। मैं गार्लन वालन कुछ में जा रहा है। अब मुझे पता है कि देर आर 7 people, 1 2 3 4 5 6 and 7. These 7 people can be arranged in how many ways? 7 pattern. अब समझो these 7 people को they are sitting on a round table. It can be arranged in 6 factorials. बराबर? Any doubts here? अच्छा, तो समझो ये राउंड टेबल बैठा है, समझो ये राउंड टेबल बैठा है। सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 7 minus 1 factorials into 4 गर्ल्स आर टुगेदर। मैंने क्या बोलता, जब भी कुछ टुगेदर रहेगा वी राइट इनटू दैट फैक्टोरियल। हाउ मेनी पीपल हैव बीन टेकन टुगेदर? 4 factorial. तो क्या लिखेंगे? अब बॉयज़ एंड गर्ल्स को गार्लैंड से रिप्लेस कर दो। मैंने क्या बताया, गार्लैंड में क्या कॉन्सेप्ट होता है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है इसलिए -1 हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? एंड ये 4 फैक्टर तो उसके बीच में आएगा, साथ में ही आएगा, कहीं पे भी आ सकता है। अब अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो एक पार्ट, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा दूसरा पार्ट, मतलब अपॉन क्या हो जाएगा? Upon 2. 2. Did you guys understand this? Any doubts here? So even if you forget the formula, that's fine. You need to know only one formula, that is n-1 factorial. अब देखो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या यूज़ किया, n-1 कर दिया, जो भी 4 लोग को लिया इंटू 4 फैक्टोरियल कर दिया, अपॉन 2 मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स हियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many ways seven people sit at a round table? 7 people sit at a round table so that all should not have the same neighbors. In any 2 arrangements. In any 2 arrangements. बोलो कैसे करेंगे?
How will you arrange this question? In how many ways 7 people sit at a round table so that all should not have the same neighbors in any two arrangements? बोलो. बोलो क्या करेंगे? In how many ways 7 people sit at a round table so that all should not have the same neighbors in any two arrangements? Any two arrangements का मतलब क्या होता है? चलो बताओ. Any two arrangements मतलब clockwise and एंटी क्लॉकवाइज. क्या लिखो बताओ? सिंपल. या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा. सेम ही है, डायरेक्शन डालते हैं. या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा. बराबर. तो ये तो पता है कि अपॉन 2 आएगा. What upon 2? How many people are there? 7. क्या एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज? क्या दोनों वो लोग राउंड टेबल पे बैठ रहे हैं? अरे यस और नो? राउंड टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है? n-1. कितना लोग हैं? 7 लोग कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? n-1 factorial ways. What is n-1 guys? 7 minus 1 7 factorial is equal to 6 factorial upon 2. So I'm teaching you irrespective of what the formula is given, but basic concept. देखो मेरे को ये पता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर तो अपॉन 2 आ जाएगा. अब कुछ भी नहीं बोला, ये बोला है कि क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज द कंडीशन वेयर क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज n-1 factorial upon 2. Did you guys understand this? n-1 factorial upon 2. How many have any doubts here? ठीक है, चलो प्लीज स्टार्ट राइटिंग. नंबर ऑफ वेज लेटर ऑफ द वर्ड्स इंटरनेशनल कैन बी अरेंज्ड. कितने को साथ में ले रहे हैं? 5. सबसे पहले ग्रुपिज्म करेंगे. I ये हो गया. N T बोलना बेटा. अच्छा सॉरी, N 3 है, सॉरी. I ट्रिपल N T बराबर. और क्या रिपीट हो रहा है? A 2 बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, ये 4 रिपीट हो गया. अब बचा जो रिपीट नहीं हो रहा है, I N T E R N A T I O N A L. बराबर ना? इज दिस करेक्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. चलो, हाउ विल वी प्रोसीड विद दिस सम? फर्स्ट कंडीशन बताओ. ऑल डिफरेंट. चलो 5 फॉर्म करना है, 5 लेटर वर्ड फॉर्म करना है. सबसे पहले करेंगे ऑल डिफरेंट. 1 2 3 4 5 बराबर. अब देखो कितना लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 C5. एनी डाउट्स है? चलो 8 C5 को सॉल्व करता हूँ. 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. 8 into 7 into 6 3 into 2 into 1 56. Anybody has any doubts here? इंटू 5 फैक्टोरियल करेगा ना, उसको अरेंज करेगा. तो अगर
ले रहा है सब लेटर्स को, तो 8C5 ना, क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहा है इसको. The question they have given ways of selecting 5 letters or words. हाँ सेलेक्ट बोले ना, क्या क्वेश्चन बोला मैंने, Selecting 5 letters. नंबर ऑफ वेज इन विच सेलेक्ट 5 लेटर्स, सेलेक्ट बोले ना, सेलेक्ट 5 बोलो ना, 8C5 कुछ गलत बोला क्या, नहीं ना, ठीक है. नेक्स्ट बताओ. 1 pair plus 3 different. 1, एक मिनट ना, एक मिनट, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग. होल्ड ऑन. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कंडीशन इज ऑल डिफरेंट, ठीक है. So first answer आ गया 8C5, that is 56 ways. नेक्स्ट क्या गाइस, 1 pair plus 3 different. 3 सेम, 3 भी है ना सेम, 3 same, 2 different or 3 same, 1 pair. ऐसा करेंगे क्या, 3 सेम 2 सेम लिखो क्या, हो सकता है ना 3 सेम 2 सेम, नहीं समझा. 1 times 3C1. 3 सेम एंड 2 सेम भी हो सकता है. व्हाट इज द कंडीशन फॉर 3 सेम 2 सेम, 1 times 2. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर जिसमें 3 सेम है, एक है ना, सो हो जाएगा 1C1 इनटू, अब 2 सेम बोला है, 2 सेम मतलब कितना सेम है, 1 2 3, सॉरी 1 2 3, तो इसमें कितना को सेलेक्ट करेंगे, 3C1. 3C1 बराबर, विच विल बिकम 3 ways. एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? नेक्स्ट कंडीशन मतलब क्या रहेगा, 1 triple and 2 different. 3 सेम 2 Different. डिफरेंट. 1 2 3 4 5 बोलो, तो क्या हो जाएगा, 1C1 तो ऐसे ही रहेगा. 1 times 7C2. अब देखो कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या रहेगा 7C2, 21. 7 6 42 21. एनी डाउट्स? नेक्स्ट 2 pair, 1 different. 2 सेम 2 सेम 1 different. 1 डिफरेंट, बोलो. 4C2 times 6C1. 4C2 टाइम्स 6C1, चेक करो. 4 में से एक को सेलेक्ट, 4 में से किसी एक को सेलेक्ट, नहीं 4 में से किसी 2 को सेलेक्ट कर दिया, समझो इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, बचा कितना 1 2 3 4 5 6, 6C2. सो 4C2 कितना हो जाएगा 6, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 6 विच इज़ 36 ways. नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, 1 2 same 3 different. 2 सेम 3 डिफरेंट. 4C1. 2 सेम बोला है, 2 सेम, तो क्या हो जाएगा 4C1 इंटू 7C4. 7C4, 7C4 की 7C3, 7C3, 4 मतलब 6 लीटर हो जाएगा, ठीक है. सो 4 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5, 140 ways. 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 140 वेस. और कुछ है, और कोई कंडीशन आएगा क्या, नहीं आएगा, बराबर. एनी डाउट्स हियर? इज दिस करेक्ट गाइस? यस. तो क्या आ जाएगा, फाइनल क्या आएगा, 256. 140 प्लस 56. 36 प्लस 21 प्लस 3 Plus प्लस 56, 256 ways. 256 वेज, बराबर है ना. ये हो जाएगा 60 140 200 प्लस 56 256. सो दिस इज़ द आंसर. लास्ट लेक्चर में जो दिया था, इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड इंटरनेशनल कैन बी मेड.
Anybody has any doubts? So now listen carefully. Tomorrow the last topic, ये इसमें भी यूज़ होता है, बेगर्स मेथड यूज़ होगा, ये बाइनोमियल में भी यूज़ होगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन होगा. इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नॉन इंटीग्रल सोल्यूशंस x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 30 दिया रहेगा, जितना भी इंटीग्रल वैल्यूज आ सकता है. सिंपल. इट माइट लुक एज अ वेरी टीडियस सम, नथिंग, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड क्या क्या आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसा आएगा, x इंटू वाई इंटू जी विल बी 30. अब ये नॉर्मली भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी करेंगे जो नॉर्मली कर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला है कि फाइंड ऑल द नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 30 हो जाएगा, ये मैनुअली भी कर सकते हैं, बट पॉजिटिव इंटीजर बोला. अब पॉजिटिव इंटीजर मतलब मुझे मालूम है कि 3 नंबर को मिला के 30 होना चाहिए. अब कौन से 3 नंबर से कितना मेथड आएगा, एक मेथड है. अब ऐसा भी बोला रहेगा कि हाउ विल यू सॉल्व, से फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू 30. या एक काम करो और थोड़ा छोटा कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू 20. अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ सकता है कि x 1 हो सकता है, y 1 हो सकता है, c 18 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो हाउ वी प्रोसीड इज़ वॉट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज टू वॉट हाउ वी आर गोइंग टू डू. ये यूज़ करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए. बेसिक मेथड से भी करेंगे, बेगर्स से भी करेंगे. एंड टुमारो इट विल नॉट टेक मोर टाइम, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शुड बी डन, आई थिंक मैक्सिमम हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, एंड विल बी डन विद बेगर्स. तो PNC इज़ ऑफिशियली ओवर, सिर्फ बेगर्स बाकी है, उसके बाद विल बी डन विद द चैप्टर. ठीक है, चलो, विल स्टॉप फॉर द डे.